Welcome back. So in the last class we discussed about equator, axis of the earth, north pole, south pole, what are the important references and what are the important reference lines. Following that discussion we discussed about equator and latitudes. So proceeding forward, today we will discuss about important parallels of latitudes. What are the important parallels of latitude? So by looking at the diagram we can see that the diagram shown here is little tilted. That is to say that earth is tilted about its axis with certain angle. कि जो हमारी धरती होती है, पृथ्वी होती है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड यूँ कुछ जैसे ओरिजिनल एक्सिस यदि ऐसे होता तो वो अब कुछ इस एंगल पे झुकी हुई होती है. इसलिए आप क्या देखते हैं, कहीं पे अर्थ का सीधा डायग्राम देखते हैं जो इक्वेटर, जो इसके और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, और एक क्या होता है कई बार यूँ झुका हुआ डायग्राम भी देख लेते हैं. तो अर्थ क्या बेसिकली अपनी एक्सिस के अराउंड एक एंगल पे इस तरह से झुकी हुई होती है. तो इसमें वही जो टिल्ट है अर्थ के झुकाव, अर्थ का जो झुकाव है वही इस डायग्राम में दिखाया गया है. सो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स विच वी विल स्टडी in today's lecture are what are the important latitudes. First one is equator, as already told, and second one is the Tropic of Cancer, and third one is Arctic Circle, then is the North Pole, then Tropic of Capricorn, then Antarctic Circle, and then is our South Pole, which we discussed in the previous class. Now the Tropic of Cancer is at 23.5 degree north and Arctic Circle is at 66.5 degree north, and Tropic of Capricorn is 23.5 degree south, and Antarctic Circle is at 66.5 degree south. Till now what we have studied in this lecture is that we are studying some important latitudes of the earth. The first one is the equator, as discussed in the previous lecture. The second one is the Tropic of Capricorn, and going upward in the north direction, first one is the Tropic of Cancer. Actually Tropic of Capricorn is in the southern hemisphere when we go towards the south pole. So if we start moving towards north pole, then from the equator, first important latitude we will study is Tropic of Cancer. Second one is the Arctic Circle. Tropic of Cancer is situated at 23.5 degree north, and the Arctic Circle is situated or located at 66.5 degree north. Then is the North Pole, and if we move in the south direction from equator to south pole we are moving. So first important latitude we will encounter is Tropic of Capricorn. After that is Antarctic Circle. Tropic of Capricorn is situated or located at 23.5 degrees south, and Antarctic Circle is located at 66.5 degrees south. In the south direction, I am repeating again, in the south direction, the first important latitude after the equator is Tropic of Capricorn, which is at 23.5 degrees south. After that is Antarctic Circle, which is at 66.5 degrees south. After that is South Pole. So whatever things I discussed till now, I am going to dictate or explain those things in Hindi now. पिछले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ाई कर ली थी और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में बात करी थी. नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, एंड टुडे विल स्टडी अबाउट सम ऑफ दी मोर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. पहली वाली अपनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जैसे इक्वेटर से हम क्या करें, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड मिलती है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आफ्टर दैट उसके बाद क्या आता है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे. देन इज अवर नॉर्थ पोल, एंड फ्रॉम इक्वेटर मूविंग टुवर्ड्स साउथ पोल पहले अपने को क्या देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज लोकेटेड है कितनी पे, 23.5 डिग्री साउथ. मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ, एंड after that Antarctic Circle is located at 66.5 degree south. तो ये important क्यों है इसकी अभी बात करते हैं. Besides the equator 0 degree, इक्वेटर क्या है अपनी 0 डिग्री पे होती है.
अभी बात करी थी हमने पिछली क्लास में, हमारी जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर इज सिचुएटेड एट 0 डिग्री एंड नॉर्थ पोल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, screen might be visible to everyone. Now talking about okay, now it would be clear to everybody. Now besides the equator 0 degree, 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है उसके अलावा द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ की जो पिछली क्लास में हमने 3 बातें करी थी ना, एक क्या थी हमारी इक्वेटर थी 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या था हमारा नॉर्थ पोल था, 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या था नॉर्थ पोल था, और 90 डिग्री साउथ पे था साउथ पोल। ये 3 जो इंपॉर्टेंट हमने रेफरेंसेस, 2 रेफरेंस पॉइंट और एक इक्वेटर की जो बात करी थी, रेफरेंसेस जो लिए जाते हैं ज्योग्राफी की स्टडी में, उसके अलावा देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होती है। आइए कौन कौन सी होती है उनकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की, पहली वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होती है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, और इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेकंड वाली जो बात कर रहे हैं, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल, ये जो सर्कल बना हुआ है आर्कटिक सर्कल, ये कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। Antarctic circle at 66.5 degrees south of the equator. Antarctic circle as you can see in the diagram, this one is the Antarctic circle, और ये कितना है अपना 66.5 डिग्री साउथ। और अब क्लाइमेट जोन्स की बात कर लेते हैं कि हमारे ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट क्यों बोला जाता है, उसकी बात करते हैं हम। लेट्स सी, सो फर्स्ट इज द इक्वेटर 0 डिग्री। अभी जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो वो बात करते हैं, जैसे यूँ इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में। देन फर्स्ट वन हमारी है इक्वेटर 0 डिग्री पे, उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, उसके बाद है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, देन है नॉर्थ पोल। तो और अब जैसे पहला जो हमको जोन क्लाइमेट का जो जोन स्टडी करना है, तो उसके लिए एक 23.5 डिग्री साउथ पे। तो पहले हम बात करेंगे इस वाले रीजन की, जो ये वाला रीजन है, तो इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। तो बेसिकली ये जो सन के साथ जो अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, तो सन का जो सन की हीटिंग पहुंचती है अर्थ पे अलग अलग एरियाज पे, उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस ड्रॉ की जाती है। और वो जो लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमको पता लगता है कि जो बिल्कुल एरियाज होते हैं, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सन की बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती है। जहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ेगी वहाँ क्या होगा, हीट गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे स्लांट पड़ेगी, तिरछी रेज पड़ती है, वहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट दूसरा होगा, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी रिलेटिवली। तो वो अभी बात करता हूँ मैं। तो इससे पहले आप 2 कंसेप्ट छोटे से समझ सकते हैं। जो सोलर रेडिएशन, जो सन की हीट अपनी अर्थ पे किस तरह से, कौन से रीजन पे किस तरह से पड़ती है, बेसिकली इनको 2 पार्ट्स में, 2 भाग में बांट दिया जाता है। तो जो सन की रेडिएशन है अर्थ पे कैसे कैसे रिसीव होती है, पहला वो भाग होता है जहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ती है, और दूसरा वो भाग होता है जहाँ पे तिरछी हीट पहुँचती है सन की। तो इसी तरह से इनको फिर जहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट हीट आ रही है सन की, वो वाला क्या होगा, ज़्यादा गर्म एरिया होगा, वहाँ पे मौसम हमेशा क्या होगा, गर्मी वाला ज़्यादा होगा। और क्या होगा, और दूसरा जो इस तरह से क्या हो, स्लांट पहुँचे, एक तो सीधा यूँ बिल्कुल पहुँचना, एक यूँ तिरछा पहुँचना, सीधा इस तरह से हीट आना सन की अर्थ पे, और एक क्या हो, यूँ तिरछी हीट पड़े इस तरह से, जैसे यूँ तिरछी हीट जा रही है। तो जहाँ पे तिरछी यानी स्लैंटिंग वे में हीट और सन रेस पड़े, तो वहाँ पे क्या होगा, मौसम होगा वो क्या होगा, इतना रिलेटिवली गर्म नहीं होगा जितना जहाँ पे क्या हो, सीधी हीट पड़े। तो अभी बेसिक जो बात करनी है अपने को, पहला हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बीच के रीजन्स को बोलते क्या हैं। तो पहला है मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है, और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का ये जो एरिया है, कि जो भी देश, जो भी कंट्रीज इस एरियाज में लोकेटेड होंगे,
तो उन सबको बोल देते हैं हम टोरिड जोन। आई थिंक टोरिड जोन इज क्लियर टू यू। देन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में देश आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। यानी ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जितने भी कंट्रीज आएंगे उनको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये जो एरिया इधर है, ये वाला, यानी कि आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड यानी जमा हुआ जोन जो होता है, बर्फ से जमा हुआ, ढका हुआ। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ से लेके एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ तक जो मेरा एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। और एंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल, ये वाला जो होगा, दिस इज फ्रिजिड जोन, बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ। तो हमने अभी क्या बात करी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होगा, जो रीजन होगा, उसको बोलते हैं टोरिड जोन। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल 23 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल का जो एरिया होता है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है वो है साउथ टेम्परेट जोन। और एंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल का जो रीजन है वो है फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन एक इधर है और हमारा एक इधर है। फ्रिजिड यानी कंप्लीटली बर्फ से ढका हुआ या जमा हुआ, वहाँ पे बर्फ़ें जमी होती है। तो इतना डिस्कशन क्लियर होगा आपको। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स in between the tropic of cancer and tropic of capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. torrid zone क्यों बोला? जो हमारा एरिया था, जो अर्थ की हम बात कर रहे थे, तो ये वाली लाइन थी इक्वेटर एंड ये वाली लाइन थी अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड यहाँ पे है हमारा 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया अभी हमने बात करी है, टोरिड जोन कहलाता है ये एरिया। टोरिड जोन इसको क्यों बोलते हैं उसकी अब बात कर रहे हैं। तो उसको टोरिड जोन इसलिए बोला जाता है, एज यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम, जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम एक बनाया गया है कि एक ऐसे शीट ली, कोई रेक्टेंगुलर शीट है, और उस पर यूँ बैटरी बिल्कुल सीधी रख के, टॉर्च बिल्कुल सीधी रख के इधर प्रकाश डाला जाए, लाइट डाली जाए, तो वो कुछ इस तरह से रिसीव होगी और उसका प्रोजेक्शन जो होगा सर्कुलर होगा एकदम। और यहाँ पे क्या हो, अब इसको टिल्ट कर दो, ऐसे टेढ़ा कर दो कुछ इस तरह से, तो जो इधर लाइट डाली जा रही है इससे ये कुछ ऐसे पहुँचेगी, और ये वाला इलिप्टिकल होगा, इलिप्स होगा, सर्कल नहीं होगा। यानी बेसिकली बात इधर समझने की ये है कि ये बिल्कुल सीधी रोशनी इधर पड़ रही है टॉर्च की, तो सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पे आ रही है। जो इंटेंसिटी होगी रोशनी की, लाइट की आने की, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे तिरछा कर दिया इसको तो ये बहुत कम मतलब कम होगी इंटेंसिटी रिलेटिवली। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की कम है पहले से।
इंटेंसिटी कम कैसे हुई? यूँ तिरछा होने की वजह से, कि अब जो लाइट आ रही है इस पे सरफेस एरिया पे, रेक्टेंगुलर शीट के सरफेस एरिया पे, वो स्लैंट हो चुकी है, तिरछा हो चुका है ये वाला, ये जो शीट है ये तिरछी हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब पहले इधर बिल्कुल सर्कुलर मेरा जो प्रोजेक्शन बन रहा है, एरिया बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इलिप्टिकल एरिया बन रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो बिल्कुल क्या हुआ, लाइट इंटेंसिटी जितनी थी उतनी ही रिसीव हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यूँ कुछ इस तरह से अपने को क्या होता है, यूँ रिसीव होती है ये वाली। तो ये जो आगे अर्थ का रोटेशन होता है, एक जो अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन होगा, कुछ इलिप्टिकल पाथ बनता है एक, और उसमें अर्थ क्या होती है, एक यूं झुकी हुई होती है एक्सिस के अराउंड। और उसमें हम स्टडी करेंगे आगे वाले चैप्टर में, वो वाली बात आएगी अपने को, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या हम बात करेंगे कि जैसे अर्थ क्या करती है, अर्थ करेगी रोटेशन कुछ इस तरह से, जैसे रोटेट करेगी अर्थ। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे रफ आइडिया अपने को लेना है कि ये जैसे सन है, अर्थ इसके अराउंड रोटेट करती है कुछ इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में, ये पाथ बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो पहले अर्थ यहाँ थी जैसे, और फिर अर्थ यूं, एक तो क्या होता है अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस के अराउंड होता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, कल बात करी थी, वेस्ट से ईस्ट धरती यूं घूमती जाती है। और दूसरा ये इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो धरती घूमती है वेस्ट से ईस्ट, यूं वेस्ट से ईस्ट। तो एक तो ये रोटेशन हो गया, अर्थ क्या करेगी, अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती जाती है, यूं कुछ ऐसे घूमेगी। और दूसरा क्या करती है, अर्थ सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगाएगी, यूं घूमती जाएगी। अभी यहाँ है, कुछ महीनों बाद यहाँ पे पहुँच जाती है, फिर चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे पहुँच जाती है, फिर इधर घूम जाती है, फिर इधर घूम जाती है, फिर यहाँ मतलब यहाँ पे पहुँच जाती है सन के अराउंड घूमते हुए। और पाथ इस यही रहता है, घूमने का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो ये वाला पाथ होता है। तो हमारी अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ में। तो और अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। तो ये जैसे इनिशियल पोजीशन ये थी, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना था, यहाँ पे है जैसे यूं, तो ये एक्सिस होती है एक, जैसे यहाँ से शुरू हुई, तो पहले यहाँ है अर्थ। अभी ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो वो थोड़ी एडवांस 9th लेवल की बात हो जाएगी, 12th लेवल की बात हो जाएगी। 6th लेवल के ऊपर जो अपने को समझने का, जो अपने को समझना चाहिए, वो कुछ आप दिमाग में इमेज इस तरह से बना सकते हैं कि धरती स्टार्टिंग से यहाँ से घूमना शुरू हुई, यहाँ से चक्कर लगाना शुरू हुई सूरज के अराउंड, सन के अराउंड, तो यहाँ, फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, यूँ घूमते सन के अराउंड यूँ चक्कर लगा रही है ऐसे। आई होप समझ पा रहे हो सारे। तो यहाँ से घूमती 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 यूँ यहाँ से घूमते हुए अर्थ जब वापस इधर आ जाए तो मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 ईयर विल बी कंप्लीटेड। कि सन के अराउंड यहाँ से घूमना शुरू हुई, यहाँ घूमती हुई वापस यहीं पे आ गई, 1 साल पूरा हो जाता है ऐसे। तो साल इस तरह से नापा जाता है। और दूसरा क्या होता है, एक्सिस के अराउंड यूँ। तो जैसे इनिशियली अर्थ का ये पॉइंट इधर था, और फिर कुछ देर बाद मान लो यूं घूम रही है ना धरती, यूं, जैसे कि आप इसको समझो, इसी इधर बोर्ड पे ही समझना चाहो तो जैसे ये धरती है, ये वाला पॉइंट इधर है यूं, तो ये क्या करेगा, अब धरती ऐसे घूमेगी ना, ये इस तरह से यूं, यहाँ पे जब अंगूठा आ गया 12 घंटे हो गए, ये पॉइंट जब घूमते हुए अर्थ यूं घूम रही है यूं इधर, तो घूमते घूमते जब अर्थ इधर आ गई, मतलब ये पॉइंट इधर आ गया, अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस के अराउंड होता है, ये वाला पॉइंट उठ के घूमते हुए इधर आ गया, तो हो जाते हैं 12 आवर्स, 12 घंटे। और अब फिर से इसको इमेजिन करना, अर्थ ऐसे घूम रही है ना यूं, अब ये वाला पॉइंट इधर था,
और ये घूम के इधर आ गया तो 12 घंटे हो गए। और अब यूं पूरा घूमे, हाथ घुमा नहीं पा रहा मैं, यहाँ से 12 घंटे हो गए, और ये वाला पॉइंट फिर से यूं घूम के वापस पूरा राउंड पूरा कर ले। जैसे ये पॉइंट है, इनिशियली घूम के यहाँ पे आ गया, 12 घंटे हो गए। इनिशियली यहाँ था, यहाँ तक आते आते 12 घंटा हो गए, 12 घंटे हो गए, फिर से यूं पूरा यूं हो जाए, तब हो जाएंगे 24 घंटे। तो ये पॉइंट फिर से क्या हो, पीछे से यूं घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के वापस यहीं पे आ जाए, वो हो जाते हैं 24 आवर्स। तो इस तरह से हमारे दिन और रात बनते हैं। और जब अर्थ ऐसे घूमती है यूं ऐसे, तो जो वाली साइड सन की रोशनी जहाँ पे पड़ेगी, सन की जो लाइट जहाँ पे पड़ती है, यूं पड़ रही है इधर, तो इधर तो हो जाएगी, इधर दिन हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इतना एरिया यहाँ पे डे होता है, यहाँ पे दिन हो जाता है। सूरज की रोशनी में है ये वाला, यहाँ दिन है, और इधर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, ये वाली रात है, नाइट। तो जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच जाती है, सूरज की लाइट जहाँ पहुँच जाती है, वो हमारा दिन है। जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पाती, वो हमारी रात है। और ये दिन और रात का जो टाइम कैसे निकलता है, फिर इस तरह से निकलता है। अब जैसे यही वाला पॉइंट है, और ये ऐसे मैंने टिल्टेड क्यों बनाया, अर्थ झुकी हुई होती है अपने एक्सिस के अराउंड भी। और अब क्या होता है, जैसे ये वाला पॉइंट हो, जैसे अब अर्थ खुद घूमती रहती है ऐसे यूं वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से घूम रही है। तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, तो 12 घंटे पास हो गए इधर। अब ये वाला पॉइंट इधर से जब इधर आया, बिल्कुल जो रात के 12 बजते हैं वो बज जाते हैं। जैसे यहाँ दिन के 12 बजे थे, तो यहाँ रात के 12 बज जाएंगे जब ये इधर यूँ घूम के आएगा इधर। बिल्कुल फ्रेश डायग्राम बनाते हैं इसका। तो हमने अभी तक दो बातें बात करी है। पहला तो क्या है, दैट जो अर्थ होती है, ये इसका एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहली क्लास में हमने इसकी बात कर ली थी। तो पहला रोटेशन तो होता है अर्थ का, धरती खुद घूमती है अपनी एक्सिस के अराउंड। तो वो कैसे घूमती है, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट। तो धरती यूँ घूम रही है इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो यूँ पूरी घूम रही है, यूँ वेस्ट से शुरू हुई, इधर इस तरह से घूमती जा रही है। तो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमना। एक तो पहला रोटेशन क्या हो गया, रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, धरती अपने एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक रोटेशन तो ये होता है। और इसमें अभी दूसरी समझने की बात ये है हमारे कि इसमें क्या होता है, जैसे ये धरती अर्थ है अपनी, ये जैसे इनिशियली एक्सिस इस तरह से बनाया था मैंने, इनिशियल एक्सिस, इसको एक्सिस ना लिखते हुए अभी। तो दूसरा क्या होता है, धरती यूं झुकी हुई होती है। दूसरा पॉइंट सीखने को, ये एंगल थीटा होता है। तो अर्थ इज टिल्टेड अराउंड इट्स एक्सिस। तो अब झुका हुआ होना, एक्सिस इधर झुका होता है यूं, ये एक्सिस झुका हुआ है, अर्थ झुकी हुई है तो एक्सिस भी झुका हुआ है। अब जो रोटेशन होता है वो इस तरह से होता है अर्थ का, यूं अर्थ का रोटेशन होगा। तो अभी हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए। अब जो सन के अराउंड डायग्राम बनाया था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सी दो बातें हमने पढ़ी अभी, पहला अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, दूसरा अर्थ अपनी एक्सिस जो ओरिजिनल होनी चाहिए वैसी ना होके कुछ एंगल से झुकी हुई होती है, यूं थीटा एंगल से, और अब अर्थ यूं वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से रोटेट करती है। तो दो बात हमने पढ़ ली। तीसरी बात पढ़ने लायक है अब, वो अभी
डिस्कस करेंगे। एक ये कंसेप्ट अपने को क्लियर है। दूसरा अपने को पढ़ना है अब दिस इज सन, सूरज है ये, एंड इसके अराउंड अर्थ क्या करती है, इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड अर्थ घूमती है। तो ये जैसे इसकी इलिप्स की एक्सिस है इस तरह से, तो इनिशियली अर्थ हमारी इधर यूं है, अर्थ। अब दूसरी हम जो समझने की बात है अपने लिए वो ये है, अर्थ रोटेट करेगी सन के अराउंड इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इधर से यूं, ये पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट करके आएगी अर्थ, वापस इधर आ जाएगी। तो अर्थ जब इनिशियल पॉइंट से सन के अराउंड घूमना शुरू, जब अर्थ अपने इनिशियल पॉइंट से सन के अराउंड घूमना शुरू करती है, तो इनिशियली इधर है, यहाँ से यूं घूमना शुरू किया, इधर से यूं स्टार्टिंग हुई रोटेशन अर्थ की सन के अराउंड, और इस पाथ पे चलते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए यूं घूमते 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 अर्थ इधर आ गई फिर से। तो ये जो रोटेशन पूरा होता है, इधर से जाके यूं वापस यूं आना, इधर से जाके और वापस इधर आ जाना, ये होता है पूरा 1 साल में, 1 ईयर। यानी अर्थ जब क्या करे, वापस पूरा यहाँ से शुरू करके यूं जाके वापस इधर आ जाए, इस पॉइंट से शुरू होके वापस यहीं पे आ जाए, ये होती है हमारी 1 ईयर। ये जो रोटेशन होता है ये होता है 1 साल में, ठीक है। और दूसरा, पहला रोटेशन ये है, 1 साल कैसे बना वो हमको समझ में आ गया। अब दूसरा लॉजिक समझते हैं, दूसरा कंसेप्ट समझना है अपने को। 1 साल क्या होती है समझ में आ गई अपने को, कि अर्थ यहाँ से घूमना शुरू किया, घूमते घूमते वापस यहीं पे आ गई, इसको हमने 1 साल बोल दिया। और दूसरा अब है एक दिन क्या होता है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, दिन क्या होता है। हमने बात करी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जैसे इस पे समझ लेते हैं एक बार। तो इनिशियली जैसे ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट P, ये पॉइंट P, दिस पॉइंट P अब यूं घूम रहा है, जैसे इस तरह से इमेजिन करो, ये और इधर बाहर की तरफ मार्कर ले आया मैं, ये है पॉइंट P, इधर ये पॉइंट P है, और धरती यूं घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से घूमती जाती है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ऐसे। अब ये पॉइंट P घूमते घूमते यहाँ से इधर से शुरू हुआ ये पॉइंट P, और यूं घूमते घूमते जब ये इधर आ गया, इधर यूं घूमते घूमते इधर आ गया, तो ये पॉइंट P जब यहाँ आ जाए वो हो जाएंगे मेरे 12 घंटे, 12 आवर्स। क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जब पॉइंट P आ गया ये हो गए 12 घंटे। तो ये 12 घंटे हुए हैं अभी तक। ये पॉइंट P यूं घूम के वापस यहाँ आ गया, यहाँ से यूं घूमा इधर आ गया, ये हो गए 12 घंटे। और ये पॉइंट, और रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से यूं। तो 12 घंटे तो हो गए इनिशियल के, पॉइंट P यहाँ से यहाँ आ गया, 12 घंटे हो गए। अब 24 घंटे कैसे होंगे, ये पॉइंट यहाँ से वापस यहाँ आ जाए, यानी P फिर से क्या हुआ, यहाँ से ऐसे घूमते 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 यूं इधर आ गया वापस। ये हो गए फिर से 12 घंटे, 12 आवर्स टोटल हो गया। अब 12 + 12 24 आवर्स। तो ये जो इनिशियल वाले 12 घंटे और वो वाले 12 घंटे, ऐसे ही 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो इस तरह से वो क्लासिफाई किए जाते हैं। और जैसे
ये वाला जो पोर्शन, जो रीजन सन की लाइट गेट करता है वहाँ पे दिन होता है, और जो पोर्शन सन की लाइट गेट नहीं कर पाता, जिस एरिया पे जैसे इधर सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ पे तो अंधेरा होगा, रात होगी, यहाँ पे दिन होगा। इधर जैसे यूं क्या हो 12 बजे हो दोपहर के, आफ्टरनून के 12 बजे हो जैसे, तो इधर क्या होगा जब ये पॉइंट इस तरह से घूम के इधर आ जाए 12 घंटे बाद, तो ये रात के 12 बज जाएंगे, 12 एट मिडनाइट, 12 एट आफ्टरनून। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वाले डायग्राम से दूसरे से ज़्यादा क्लियर होगा अपने को ये हमने क्या बात करी अभी। अब इसको समझते हैं कि अर्थ, और अर्थ कैसी होती है, टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है, यूं झुकी हुई होती है अर्थ, ये अर्थ का एक्सिस है। तो ये जो सन की लाइट यहाँ से प्रोजेक्ट होती है यूं, तो यहाँ से सन की लाइट प्रोजेक्ट होगी जो इस तरह से। तो जो ये झुकाव है एक्सिस अर्थ का अपनी एक्सिस के अराउंड, झुकाव क्या होता है, इस तरह से होता है, टिल्टेड होती है एक्सिस यूं, ये है अर्थ की एक्सिस ऑफ अर्थ। अब समझने की बात क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे तो लाइट आ रही है सूरज की, तो यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे होगा दिन, इधर होगा डे, और इस साइड लाइट नहीं आ रही है, इधर होगी नाइट, क्योंकि यहाँ सूरज की लाइट नहीं आ रही है, नाइट हो गया, नाइट हो गई। तो ये वाला पॉइंट जैसे इधर है और ये वाला घूम के इधर आ जाए इधर, तो इधर 12 बजे दोपहर के, तो जब ये पॉइंट घूम के पूरा इधर आ जाएगा 12 घंटे बाद, तो इधर क्या होगी, नाइट, मिड नाइट होगी, मिड नाइट, रात के 12 बज जाएंगे। तो दो रोटेशन हो रही है, एक तो अर्थ की हो रही है सन के अराउंड कुछ इस तरह से, और दूसरी रोटेशन कौन सी हो रही है, अर्थ की हो रही है अपनी एक्सिस के अराउंड। तो ये कुछ समझने लायक बात थी, आगे भी इसमें बहुत कुछ समझने लायक है, 6th क्लास के लेवल पे वो अभी नई बात करेंगे, थोड़ा और जब इसको एडवांस्ड वर्जन में लेके जाएंगे तब बात बाकी बची हुई करेंगे। तो अभी हमारे समझने लायक दो बातें थी, दिन क्या होता है, अर्थ जो इस तरह से रोटेट करेगी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है इस तरह से यूं, तो जो सूरज की साइड वाला रीजन होता है जहाँ पे सन की रोशनी आ जाती है, तो इधर सूरज की रोशनी निकलती है यूं और इधर आ जाती है इतने वाले पार्ट में, जो ये नीला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इधर सूरज की रोशनी आ रही है इस वाले में, और यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे रोशनी आ रही है, यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही। तो ये जो रोशनी इधर आ रही है ये वाला है दिन, और यहाँ रोशनी आ नहीं रही सूरज की, ये है रात। ये है दिन, इधर रोशनी आ रही है सूरज की, ये है रात, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही। तो दिन रात कैसे होते हैं, और फिर जब ये सीजन कैसे बनते हैं, सीजन जब अर्थ यहाँ से घूमते घूमते यूं पूरा घूम के वापस 1 साल हो जाता है, तो 1 साल में अलग अलग अपने को सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो कभी अर्थ यहाँ होगी, कभी अर्थ यहाँ पे होगी। अर्थ कैसे रोटेट करती है, यहाँ इस तरह से रोटेट कर रही है सूरज के अराउंड, तो जब अर्थ यहाँ पे होगी एक बार, फिर अर्थ जब इधर होगी, एक टाइम अर्थ इधर भी होगी, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अलग अलग जब अर्थ की पोजीशंस होती है तब अलग अलग ऋतुएं या सीजन्स बन जाते हैं यूं।
आई होप ये आपको क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमने बेसिक बातें करी हैं अभी। देन टोरिड जोन क्या होता है, ये बात करी हमने एक तो, और दूसरा क्या होता है मेरा टेम्परेट जोन, और फ्रीजिड जोन क्या होता है। तो टोरिड जोन वो वाला जोन होता है this one is equator, this is tropic of Cancer, एंड ये वाली है लाइन आर्कटिक सर्कल, ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर है एंटार्क्टिक सर्कल वाली लाइन, एंटार्क्टिक सर्कल, ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाली लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये वाला है 23.5 डिग्री साउथ, ये है 66.5 डिग्री साउथ, इधर है साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। अब जो समझने की बात है हमारी, तो पहले इस तरह से समझते हैं इसको, फिर इसका टिल्टेड डायग्राम बनाएंगे हम। तो जो समझने की बात पहली हमारी ये है, जो ये वाला रीजन है मेरा, दिस रीजन, दूसरे इंक से बनाते हैं ये वाला, इससे तो क्लियर होगा, सबको दिख रहा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, यहाँ ये जो एरिया है मेरा, ये होता है टोरिड जोन। दिस इज नोन एज टोरिड जोन। और इसको टोरिड जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सन की लाइट, जो सन की रेज आती है सन से, जो सनलाइट आती है इधर डायरेक्टली आती है इस वाले रीजन पे। अभी जो टिल्टेड डायग्राम है और जो इलिप्टिकल है उसके अराउंड समझाऊंगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना जो है इससे समझ लो एक बार कि इतना जो एरिया है यहाँ पे सन की जो रोशनी आती है बिल्कुल डायरेक्ट आती है। जैसे ऊपर डायग्राम में हमने देखा है ना इधर कि यहाँ पे जो रोशनी आती है सन की वो यूँ आती है, बिल्कुल सीधी इस तरह से गिरती है। तो इसको इस तरह से जो रोशनी गिरती है बिल्कुल सीधी, तो वो वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन।
यहाँ पे बिल्कुल सीधी सनलाइट गिरती है, सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी आती है, इसलिए इसको टोरिड जोन बोलते हैं। और यदि बिल्कुल सूरज की रोशनी एकदम सीधी गिरती है इधर, तो यहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है, इस एरिया में जितने भी देश आएंगे इधर, उन देशों में गर्मी बाकी देशों के रिलेटिवली ज़्यादा होगी, इसलिए इस रीजन को टोरिड जोन बोलते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. और इसमें जो मिड डे सन होता है ना, वो क्या होता है, टोरिड जोन में जितने भी एरिया है, रीजन है, वहाँ पे साल में कम से कम एक बार उन पे बिल्कुल सूरज यूँ सिर के ऊपर होता है एकदम, तो यूँ बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी गिरेगी, तो डायरेक्ट रोशनी गिरेगी तो वो क्या होगा, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होगी बाकी देशों के रिलेटिव में। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जैसे ये यहाँ पे टोरिड जोन में जितने भी रीजन होते हैं ना, साल में कम से कम एक बार उन पे यूँ इस तरह से रोशनी गिरती है सूरज की बिल्कुल सीधी, तो यहाँ पे एकदम सीधा यूँ सिर के ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है जैसे, तो गर्मी ज़्यादा फील होती है। और टोरिड जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी लैटिट्यूड्स होगी, तो उन सारी लैटिट्यूड्स पे जो सूरज होता है साल में कम से कम एक बार ओवरहेड होता है, यूँ सिर के बिल्कुल ऊपर होता है सीध में, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है बाकी देशों के कंपैरिजन में। आफ्टर दैट द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. और जो दोपहर का सूरज होता है, the midday sun never shines overhead on any latitude, और इनके बाहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बाकी जो रीजन बच गए, ये जो रीजन बचा हुआ है एक, और जो नीचे ये वाला रीजन बचा हुआ है, इन दोनों रीजन में, इसमें और इसमें जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं, या फिर सीधी भाषा में समझना हो तो एक ये जो रीजन है और एक ये जो रीजन है, इन रीजन्स में जितने भी देश आते हैं, तो वहाँ पे कभी भी क्या होता है, सूरज बिल्कुल यूँ सीधा नहीं होता, दोपहर का सूरज सर के ऊपर बिल्कुल यूँ सीधा नहीं होता, टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, यूँ झुका हुआ होगा कुछ इस तरह से, यूँ होगा या यूँ होगा, जैसे भी होगा इस तरह से सूरज की रोशनी झुकी हुई आएगी, इस तरह से झुकी हुई आएगी, तो रिलेटिवली जो टोरिड जोन में जितनी गर्मी हो रही थी उसके कंपैरिजन में इधर इतनी गर्मी नहीं लगेगी, इस रीजन में और इस रीजन में, और इस रीजन में और इस रीजन में कभी भी सूरज क्या करता है, सर के बिल्कुल ऊपर नहीं आता, तिरछी रोशनी आती है उसकी। यही डायग्राम बना के इधर समझा रखा है अपने को कि रोशनी जो आएगी वो तिरछी आएगी, ऐसे तिरछी आएगी, तो कुछ इस तरह से वो बंट जाएगी ज़्यादा एरिया में, तो गर्मी कम लगेगी। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, और जो सन रेज का एंगल है वो क्या होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ही सर के ऊपर आ रहा है इधर, फिर आगे क्या होगा, यूँ थोड़ा और वो हो गया कि जैसे यूँ इसको, ये जो सीट बनी हुई ना रेक्टेंगुलर, तो ये क्या हुआ, पहले इस तरह से बनी हुई थी बिल्कुल सीधी, फिर जैसे इसको टेढ़ा किया हमने, तो जैसे इस बार इतना टेढ़ा कर दिया, थोड़ी देर में जैसे इतना टेढ़ा कर दिया, तो जितना जितना ये कम टेढ़ा, ज़्यादा टेढ़ा होता जाएगा, ज़्यादा टिल्ट होता जाएगा यूँ इस तरह से, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगी रेक्टेंगुलर सीट, और इधर टॉर्च है मेरी इस तरह से। अब जब ये रोशनी डालेगी तो इस पे आएगी ही नहीं, रिसीव नहीं होगी, तो वो रोशनी इसको क्रॉस करके पैरेलल से निकल जाएगी, इसको क्रॉस नहीं कर रही, सीधी इसके ऊपर से यूँ चली जाएगी, तो इसके ऊपर से ही चली गई इस पे, तो वो रोशनी गिरी ही नहीं सीट पे। तो वहाँ पे जैसे जैसे, अब इसका बोलने का तरीका यह है कि यहाँ से लेके यूँ, ये अपना ये रीजन है एक, और जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ या फिर नीचे साउथ पोल की तरफ आ जाओ, तो जैसे इधर जाते जाएंगे तो यहाँ पे एक बिल्कुल सीधी गिर रही है रोशनी ऊपर, एक तो ये एंगल है, और
दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जैसे इस रीजन में आ गए, अब जैसे यहाँ पे आ गए हम इधर, तो यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा और जो टिल्ट का है, फिर यहाँ पे आ गए और एंगल जो तिरछा होने का एंगल कम हो गया सूरज की रोशनी गिरने का, यहाँ पे आएंगे और जो तिरछा हो जाएगा एंगल और भी ज़्यादा वो हो जाएगा, यूँ तिरछा हो जाएगा, तो और कम ज़्यादा और कम इधर रोशनी आएगी, और कम आएगी, और कम आएगी, और कम आएगी, और इस तरह से इधर नॉर्थ पोल पे रोशनी पहुंच ही नहीं पाती सूरज की। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। फिर से सुनो कि जो सूरज की रोशनी होती है इस रीजन में बिल्कुल साल में एक बार कम से कम क्या होती है, जो अपना ओवरहेड गिरती है, सर के बिल्कुल सीधा यूँ गिरती है ऊपर, यहाँ पे तिरछा होना शुरू हो जाती है रोशनी, इधर 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 इधर, और नॉर्थ पोल पे आते आते तो बिल्कुल सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो नॉर्थ पोल में साल में 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, इस लॉजिक के कारण। As such, the midday sun never shines overhead on any. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. कि जो मिड डे सन है कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं गिरता, यूँ जो रोशनी गिरती है सन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलावा। इस टोरिड जोन में सीधी सीधी रोशनी आती है, जो ऊपर का जो जोन हो गया एक और जो नीचे बचा हुआ जोन हो गया उनमें तिरछी रोशनी गिरती है। Midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles. कि जो एंगल ऑफ सन रे जो सूरज की रोशनी गिरने का एंगल है ना, वो क्या है, फिर कम होता जाएगा। तो जैसे इनिशियली अब बात करें तो इनिशियली जैसे बैटरी वाली बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर शीट थी, इधर से मान लो रोशनी आ रही है यूँ इस तरह से, ये पॉइंट है मेरा, जैसे इस पॉइंट पे आनी है इधर, यूँ रोशनी आनी है इधर, तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे हीट रिसीव हो रही है, तो बिल्कुल जो ओवरहेड सन की रोशनी गिरती है वो 90 डिग्री पे आती है। फिर क्या होता है, टोरिड जोन के अलावा ऊपर जब मूव करना शुरू करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, तो इस तरह से रोशनी गिरनी शुरू हो जाती है यूँ, फिर कुछ और इस तरह से तिरछी हो जाती है, और ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ और यूँ गिरनी शुरू हो जाती है तिरछी, और ऊपर जाएंगे यूँ तो और तिरछी हो जाएगी यूँ, और नॉर्थ पोल पे तो रोशनी कभी पहुंचती नहीं, यूँ निकल जाती है, नॉर्थ पोल पे तो कभी नहीं गिर पाती, एंगल और तिरछा हो गया, यूँ हो गया अब तो नॉर्थ पोल पे। तो इनिशियली 90 डिग्री एंगल था, फिर झुका 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 इस तरह से झुकता गया यूँ 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 यूँ, और नॉर्थ पोल पे तो इस तरह से हो जाता है टिल्ट। तो ये टोरिड जोन पे इनिशियली एंगल ऐसे था 90 डिग्री का, फिर क्या हुआ, यूँ झुकता गया, और नॉर्थ पोल पे तो बिल्कुल ही पहुँच नहीं पाती इस कारण रोशनी। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bound by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. और अब तक यही हम बात करते आ रहे हैं कि अब जो बाकी रीजन बच गए मेरे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक सर्कल है, ये वाला जो एरिया है, इसको जैसे इस इंक से बनाते हैं, ये जो है आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया है, कौन सा एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसकी बात कर रहे हैं हम। As such, the areas bound by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere की पहली बात कर ली, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है पूरा, और दूसरी बात करेगा अब कि एक ये वाला
कि ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन दोनों की बात कर रहे हैं स्टेटमेंट में। पहला क्या है, एंड दूसरा एरिया कौन सा, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। इनमें टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है, यानी बीच का सा है। बिल्कुल टॉरिड जोन में जैसे सर के ऊपर रोशनी गिर रही थी सूरज की, वैसा नहीं है, उतनी हीट नहीं है, उसके रिलेटिवली कम है। मॉडरेट यानी उसके रिलेटिवली कम है, तो ठीक ठाक टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, इसलिए इन दोनों रीजन्स को हम बोल देते हैं। तो इनमें क्या हो गया, कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, इनमें टेम्परेचर है मॉडरेट। दीज देयरफॉर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, उतना ज़्यादा नहीं है, उसके रिलेटिवली कम होता है, इसलिए इसको मॉडरेट इधर टेम्परेचर है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोल दिया। क्या बोल दिया, टेम्परेट जोन। तो ये वाला हमारा हो गया टेम्परेट जोन हो गया, और ये नॉर्थ की साइड में है ना, इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन बोल दिया, और ये वाला साउथ की साइड में है तो साउथ टेम्परेट जोन बोल दिया। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, ये भी टेम्परेट जोन है और ये भी मेरा क्या है, टेम्परेट जोन है। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी बेसिकली हमने क्या बात करी है कि ये जो ब्लू हाईलाइट करके ये एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या होगा कि ये है टेम्परेट टेम्परेट जोन, और ये नॉर्थ की साइड में है ना, नॉर्थ पोल की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको बोल दिया नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये भी टेम्परेट जोन है, और ये साउथ की साइड में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको बोल दिया साउथ टेम्परेट जोन। तो ये हमारे इतने एरिया क्लियर है, हमको एक बार ढंग से देख लो इसको। दिस वन इज द टॉरिड जोन, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला, और ये वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया है वो है साउथ टेम्परेट जोन। देन areas lying beyond the Arctic and North Pole, areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above. ऐसा क्यों है? Here sun does not rise much above. यहाँ पे सूरज एकदम सर पे नहीं आता, यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है सूरज की रोशनी, नॉर्थ पोल पे तो पहुँच ही नहीं पाती, और बाकी जो एरिया है वहाँ पे स्लांट, जैसे यूँ स्लांट होता गया, तिरछा होता गया, यूँ तिरछा होता गया, इस तरह से यूँ इस तरह से। तो इस तरह से क्या हुआ, इनिशियली ऐसे था टॉरिड जोन में, फिर यूँ होता गया इस तरह से। तो यही बात इसमें बोली गई है कि एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, ये जो बाकी एरिया है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल की तरफ, और दूसरा एरिया अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल की तरफ का जो एरिया बचा है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। यहाँ पे सूरज उदय होता ही नहीं है होराइजन के ऊपर। हेयर सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, कि यहाँ पे होराइजन के ऊपर सूरज इतना ज़्यादा उगता नहीं है, राइज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, कि होराइजन के ऊपर इतना सूरज यहाँ पे उदय नहीं होता। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। दीज आर देयरफॉर कोल्ड फ्रीजिड जोन्स, वेरी कोल्ड। फ्रीजिड जोन्स होता है वेरी कोल्ड। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो सूरज की किरणें आती है वो बिल्कुल ही तिरछी तिरछी आती है, यूँ इस तरह से, इतनी तिरछी आ रही है। एक टॉरिड जोन में तो इस तरह से यूँ सीधी गिर रही थी, ये वाला पॉइंट था जैसे ये जैसे किसी बंदे का सिर है तो इसके ऊपर यूँ आ रही है, यूँ बिल्कुल 90 डिग्री पे। फिर आगे बढ़े तो
मॉडरेट जोन था, मॉडरेट टेम्परेचर था वहाँ पे, जो टेम्परेट जोन था वहाँ पे कुछ इस तरह से गिरने लगी थी यूँ। और आगे टेम्परेट जोन से आगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जब हम चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से झुकाव हो जाता है, बिल्कुल ही तिरछी हो रही है, और तिरछी हो गई, और तिरछी हो गई, ऐसे फिर और तिरछी हो गई। जैसे जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन से निकल के नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना शुरू हुए तो पहले इस तरह से तिरछी रोशनी आ रही है, फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पे जैसे यूँ तिरछी आ रही है रोशनी, फिर और तिरछी हो गई, फिर और तिरछी हो गई। नॉर्थ टेम्परेट जोन से नॉर्थ पोल की तरफ चलते जा रहे हैं तो पहले इतनी तिरछी थी, फिर और तिरछी हो गई, और तिरछी हो गई, और तिरछी हो गई लाइन, और स्लांट हो गई या फिर तिरछी हो गई। और नॉर्थ पोल पे तो ऐसे हो जाता है, पहुंच ही नहीं पाती नॉर्थ पोल पे सूरज की रोशनी यूँ, इसलिए क्या होता है, यूँ बिल्कुल झुकी स्लांटिंग इस तरह से जा रही है, बिल्कुल तिरछी रोशनी जा रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि रोशनी जा भी रही है तो यूँ बिल्कुल तिरछी तिरछी बहुत ही कम जा रही है, और नॉर्थ पोल पे तो जा ही नहीं रही, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फ्रीजिड जोन बोल देते हैं, इसलिए वेरी कोल्ड रीजन होते हैं, इसलिए बोल देते हैं फ्रीजिड जोन। तो ये जो एरिया हो गया, जो ये एरिया है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच, ये फ्रीजिड जोन, और जो इधर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है ये है फ्रीजिड जोन। दो फ्रीजिड जोन हो गए, कौन कौन से हो गए मेरे, ढंग से समझना है डायग्राम, तो इधर बना देते हैं हम। फ्रीजिड जोन कौन कौन से हो गए, अब फ्रीजिड जोन को जैसे दूसरी इंक से हम हाईलाइट करते हैं, ये जो जोन हो गया एक, और बाकी बचा हुआ एक ये जोन हो गया। ये दोनों फ्रीजिड जोन होते हैं। दिस इज फ्रीजिड जोन and another one is, this one is also frigid zone। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,